بعض علاقوں میں جب کوئی انسان واضح اور صاف ستھری بات کو بھی سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے تو اسے بوتل یا ڈھکن کہا جانے لگتا ہے۔ ٹھیک یہی حال جناب امتیاز پلاموی وہابی کا ہے۔ یہ جناب بھی بوتل یا ڈھکن ضرور ہیں، کیونکہ ان میں بھی بات سمجھنے کی اہلیت بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ جناب اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتے ہیں، چینل کا نام بھی اپنے نام پر رکھا ہے اور اس میں بھی اپنے نام کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہے، مگر یہ اتنے بڑے ڈھکن یا بوتل ہیں کہ ان کو یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ کس بات پہ اعتراض کرنی چاہیے اور کس بات پہ نہیں۔ ان کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ علماء کے درمیان مسائل میں اختلاف کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ علماء اپنے اپنے دلائل کے اعتبار سے دوسرے علماء سے اختلاف کرتے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ دیوبندی مذہب کی کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ اور تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان بھی بہت سے مسائل میں اختلاف ہے، اور بعد والوں میں بھی، مگر اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھنے والے اس امتیاز وہابی کو اتنی موٹی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جبھی تو اس نے کل جو ویڈیو اپلوڈ کی اس کا تھمبنیل یہ ہے، دیکھیں کیا لکھا ہے اس پر۔ لکھا ہے دونوں بریلوی خطیب ہیں، ایک حلال دوسرا حرام۔ سامعین، آپ نے کچھ غور کیا؟ ہم نے ان کے تھمبنیل پر کئی ویڈیوز میں گرفت کی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اب امتیاز وہابی تھمبنیل میں بات مکمل بھی لکھنے سے گھبرا رہے ہیں۔ یہ ہے حق اور حقانیت کا روب کہ اپنی ویڈیو کے تھمبنیل میں کچھ بھی لکھ کر گمراہی پھیلانے والا یہ امتیاز وہابی اب ٹھیک سے بات بھی لکھ نہیں پا رہا ہے۔ الحمدللہ۔ خیر سامعین، تھمبنیل تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، اب ویڈیو میں جو جہالت کی گئی ہے وہ بھی آپ پہلے ملاحظہ فرما لیں، پھر جواب بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ میں محمد امتیاز پلاموی، معزز ناظرین، اس حقیقت کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ شادی بیاہ میں کس طریقے سے خرافات ہو رہے ہیں۔ اب تو مسلمانوں نے اپنی باراتیوں میں پٹاخوں کے ساتھ ڈی جے کا بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈی جے لانے کی وجہ سے کتنی تباہیاں بربادیاں ہو رہی ہیں، ہمارے سماج کے لیے کس قدر نقصان دہ ہیں۔ لیکن بریلی مذہب کا ایک گروپ ہے، حشمتی گروپ، ڈی جے کو جائز قرار دینے پر یہ گروپ لگا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا ویڈیو پیش کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ سنیں گے کہ بریلی مذہب کے دو گروپ، ایک حشمتی گروپ اور ایک دوسرا گروپ ہے، وہ کس طریقے سے آپس میں ہی مد بھیڑ ہو رہے ہیں۔ آپ فیصلہ کریں کہ بریلی مذہب کا کون سا گروپ صحیح کہہ رہا ہے، کس کے بیان میں دم ہے، کس گروپ کے بیان کی وجہ سے سماج میں اصلاح ہو سکتا ہے۔ تو چلیے پہلے آپ حشمتی گروپ کے خطیب ہیں، مفتی نقیب نام ہے، ان کا بیان سن لیجئے۔ اس کے بعد آپ بریلی مذہب کے ایک اور خطیب جسے مفتی حماد رضا کہا جاتا ہے، ان کے بیان کو بھی آپ سنیں گے۔ مطلب یہ کہ جناب امتیاز وہابی نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے تاکہ لوگوں سے یہ فیصلہ کروا لیں کہ ڈی جے کے تعلق سے کن کی بات درست ہے اور کن کی بات سے اصلاح ہو سکتی ہے۔ حالانکہ خود ان کے دیوبندی مذہب میں ڈھیروں ایسے مسائل ہیں جن میں ان کے علماء ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان پر یہ بات کریں اور اپنی عوام سے اپنے علماء کے اختلاف کی بات کر کے ایک اچھے انسان ہونے کا ثبوت دیتے، مگر ان کا مقصد چونکہ دیوبندیوں کے دل و دماغ میں ہم سنیوں کے خلاف نفرت بھرنا ہوتا ہے، اس لیے اپنے گھر میں جھانکنے کے بجائے سنی علماء کے بیانات ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور جو ہی ایک دوسرے کے مخالف یا ان کی وہابی ذہنیت کے مطابق زہر پھیلانے میں کام آ سکنے والے بیان کی ویڈیوز ملتی ہیں، یہ وہابی بات سمجھے بنا ہی فوراً اس پر اپنا جاہلانہ تبصرہ کر کے ویڈیو بناتے ہیں اور اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیتے ہیں، جیسا کہ اس ویڈیو میں انہوں نے کیا ہے۔ خیر اب دیکھیے کس ویڈیو کو یہ پیش کرنے والے ہیں، اس میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ ڈی جے کی بات ہے تو جو مولوی یہ کہے کہ ڈی جے مت لے کر کے آؤ، ڈی جے مت لے کر کے آؤ، اس مولوی سے کہو کہ جلوس میں یہ بھی اعلان کرتے آؤ کہ ڈی جے اگر حرام مان بھی لے تمہارے کہنے پر، پہلے تو یہی ثابت کر دو کہ یہ ناجائز اور حرام ہے، پہلی منزل تو یہی۔ اگر مان بھی لے تو اس سے پوچھو ڈی جے سے اتنا بچ رہے ہو، وہابی سے کتنا بچتے ہو، دیوبندی سے کتنا بچتے ہو۔ کچھ جگہ مولویوں نے میٹنگیں کی، ڈی جے ہوگا، ڈی جے اگر لوگ لے کر کے آئیں گے تو ہم بارات میں نہیں جائیں گے، نکاح نہیں پڑھائیں گے، اتنے
मुत्तकी हो तो उससे पहले ये कहते हैं कि वहाबी आएगा तो निकाह नहीं पढ़ाएंगे, देवबंदी आएगा तो निकाह नहीं पढ़, ये है इश्क रसूल। सामाईन, मेरे नज़दीक इनकी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि जितनी सख्ती डीजे के ताल्लुक़ से उलमा व अइम्माए मसाजिद हजरात दिखाते हैं, जिन मकामात पर बदमज़हबियत व वहाबियत को नज़रअंदाज किया जाता हो, वहाँ वहाबियों बदमज़हबों के ताल्लुक़ से भी ऐसी सख्ती होनी चाहिए। मगर डीजे के जवाज़ की तरफ जो इनका रुझान है वो हमारे नज़दीक दुरुस्त नहीं है। उससे पाक फरमाते थे नहीं, नाजायज है, हराम है, ये ना किया कर, इसकी कमाई भी हराम होती है, इस पे लुटाना भी हराम है, इसके जरिए कमाना भी हराम है। हाँ, डीजे में जो साउंड लगते हैं, जो वो पैसा लेके आते हैं वो भी हराम है, और जो पैसा लुटाते हैं वो देना भी सारा ही हराम है। दोनों तरफ से डूब पड़ रही है इसमें, दोनों तरफ से। लोग डीजे बजाते हैं शादी में लगभग, हाँ जी, बजी जाता है। किसी की अम्मा नहीं मानती, किसी की खाला नहीं मानती, किसी के यार नहीं मानते, किसी के अब्बा ही नहीं मानते। दादी भी कह रही है ढोलक ना बजाना तो ब्याह न लगता, ऐसा लगे जनाजा है, और इससे को कुरान पढ़ो तो इसकी फूट जाती है, कहती है टिपता नहीं। हजरत नमाज पढ़ने को तो कहीं घुटने काम नहीं कर रहे, और डीजे में 1.5 घंटे खड़ी रहेगी ऐसी बुढ़िया, एक एक हड्डी काम करती है इसकी। कुरान की बारी आती है तो चश्मे से की जरूरत पड़ती है, उसमें भी नहीं दिखता, और जब डीजे की बारी आती है तो अंधेरे में भी खूब दिख रहे इसे। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मान जाओ यार, मान जाओ, अगर ये पाप है तो खत्म कर दो। गौस पाक के चाहने वाले, गौस पाक के मानने वाले, बताओ जब किसी के घर में डीजे बजता होगा, गौसे पाक को खुशी होगी कि तकलीफ? जोर से बोलो, तकलीफ होगी ना। तो डीजे बजा के गौस पाक को नाराज कर लिया, अब कह रही आप 11वीं करूंगा अगर मेरे घर में बरकत आ जाए तो। नाराज तो पहले ही कर बैठे हो, बरकत किधर से आनी? खुद आप सोचो, फैसला करो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वैसे सिलसिले में आप हज़रात के कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश करें। मोहतरम सामाईन किराम, पूरी वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमा लिया है। अब बताएं इसमें क्या ऐसा है कि जिस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत इस इम्तियाज़ वहाबी को पेश आई। दोनों हज़रात अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं, क्योंकि दोनों का नुक्ता नज़र अलग अलग है। अलबत्ता डीजे के जवाज़ की तरफ उनका जाना दुरुस्त नहीं है। अब चूँकि इस वहाबी ने हिमाकत कर ही दी है तो इनको इनके घर का रास्ता दिखाना भी तो ज़रूरी हो गया ना, इसलिए इनको इनके घर का रास्ता दिखाई देते हैं। इसके लिए पहले आप देवबंदी मज़हब के इस मुफ्ती का बयान सुने, फिर उसके बाद दूसरे मुफ्ती को भी हम पेश करेंगे आपकी अदालत में। डिजिटल तस्वीर, इसमें बड़ा इख्तलाफ है। इसमें बहुत सारे उलमा डिजिटल तस्वीर को तस्वीर नहीं मानते हैं, इसलिए वो उसको जायज़ कहते हैं, और बहुत सारे उलमा इसको भी हराम कहते हैं। मेरा रुझान जवाज़ ही की तरफ है, क्योंकि मैंने जो इसकी तहकीक की है, मैं क्या मुहक्किक हूँगा जो बड़े हजरात की मौजूदगी में, तो मुझे इसके तस्वीर होना, इसको तस्वीर लुगत में कहते हैं इसलिए कि लोगों के पास कोई ऑल्टरनेट लफ्ज़ नहीं है इसको डिफ़ाइन करने के लिए, तो इसलिए जो तस्वीर से लफ्ज़ उधार लेके इस पर लगा दिया, वरना ये वो तस्वीर नहीं है जो प्रिंटेड होती है। समझ में आई बात? ये लहरें हैं, बरकी लहरें हैं जिनको करार नहीं है। और दूसरी बात ये कि डिजिटल तस्वीर में मुज़ाहत लिखल्क़िल्लाह भी नहीं है। अगर इसको तस्वीर मान भी लिया जाए तो तस्वीर के जो हराम होने की इल्लत है वो इसमें नहीं पाई जाती। तस्वीर हराम क्यों है? नबी ने फरमाया मुज़ाहत लिखल्क़िल्लाह, अल्लाह की तख्लीकी नकल है, जबकि इसमें नकल नहीं है, उसी इंसान को उसी हालत में दिखाया जा रहा है। तभी लोग कभी ये नहीं कहते मैंने टीवी में मौलाना तारी जमील साहब की तस्वीर देखी है, बल्कि क्या कहते हैं, मैंने टीवी में मौलाना तारी जमील साहब देखे, मैंने टीवी में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब देखे, लोग ये कहते हैं। तो इसमें मुज़ाहत लिखल्क़िल्लाह नहीं, हमारी राय है, गलत भी हो सकती है भाई, तो एहतियात तो ये है कि इज्तिनाब किया जाए। सामाईन किराम, तारिक मसूद देवबंदी के बाद अब आपकी अदालत में दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस देवबंदियों के मुफ्ती सईद पालनपुरी को पेश करता हूँ। देखें ये क्या कह रहे हैं। डिजिटल तस्वीर का क्या हुक्म है? एशिया के तमाम मुफ्ती और अरबों में से 20% मुफ्ती इस पर मुत्तफिक हैं कि हर तस्वीर हराम है। अरबों में 80% मुफ्ती कहते हैं नहीं,
कैमरे की तस्वीर जायज है, लेकिन अरबों में भी 20% मुफ्ती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अभी माजी करीब के लोगों में से इब्न बाज रहमहुल्लाह, वो कैमरे की तस्वीर को कतन हराम कहते थे और मादरजात नाबीना थे और पूरी जिंदगी में उनकी कोई तस्वीर नहीं ले सका कोई फोटो वाला, कोई कैमरे वाला उनका फोटो नहीं ले सका, कभी वो टीवी पर नहीं आए। और सऊदिया के वो मुफ्ती आजम थे और उनका फतवा था कि कैमरे का फोटो हराम है। और एशिया के तो सारे मुफ्ती मुत्तफिक हैं कि कैमरे का फोटो जायज नहीं है। मोबाइल में भी कैमरा है, उसमें डिजिटल है, उसका फोटो भी जायज नहीं, हराम है। इस सिलसिले में एक फतवा कराची में दारुल कोरंगी से हजरत मुफ्ती शफी साहब कुद्दसा सिर्रुहू के मदरसे से एक फतवा लिखा गया और उस फतवे को देवबंद और सहारनपुर में भेजा गया। उस फतवे में यह था कि डिजिटल का फोटो है, उस पर फोटो का हुक्म नहीं लगना चाहिए। उन्होंने गलती ये की कि ये ईमेल से भेजा, दारुल देवबंद ने उसका रद्द लिखा, मज़ाहिरुल उलूम ने उसका रद्द लिखा, मगर वो चूंकि ईमेल से उन्होंने भेजा था तो वो दुनिया में सब में आम हो गया और जंगल के आग की तरह से फैल गया कि डिजिटल का फोटो नहीं है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। एशिया के सब मुफ्ती मुत्तफिक हैं और दारुल कराची से भी फतवा पूछो, वो अब भी हराम का ही फतवा देंगे। मालूम हुआ कि डिजिटल तस्वीर हराम है और वीडियो क्या है, इम्तियाज़ वहाबी ही बेहतर बता सकते हैं। वीडियो तो ख़त्म हुई, मगर जाते जाते एक हवाला इम्तियाज़ वहाबी को देते जा रहा हूँ। ये देखिए किताब मलफूज़ात फ़क़ीहुल उम्मत जिल्द दोम सफ़ा नंबर 46 पर देवबंदी मज़हब के फ़क़ीहुल उम्मत जनाब महमूद हसन गंगोही कहते हैं, जो शख्स बिदअत का काम करे उसको बिदअती कहते हैं और जो हराम काम करे उसको क्या कहते हैं वो आप जानें। सामाईन, आप ही कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दें कि तस्वीर खिंचवा कर सोशल मीडिया पर आने वाले देवबंदी मज़हब के उलमा और ख़ुद इम्तियाज़ वहाबी हराम काम करके अपने घर के इस हवाले से क्या बन गए। जाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए और वीडियो को लाइक करके खूब शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच जाए और लोगों को देवबंदी मज़हब की हकीकत का अंदाज़ा हो जाए और इसके मकरू फ़रेब से लोग अपनी हिफाजत कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा।